Hello everyone, Namaskar. How are you all? I hope all of you are doing good. Welcome back again to this channel. आज मैं बिल्कुल मस्ती के मूड में नहीं हूँ. पूछो क्यों? क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट? और मैं आपको बेट लगा के बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आएगा ही आएगा. This is a compulsory question you will be getting either in the long type or in the short type, but it is a mandatory one, right? Compulsory question आएगा ही आएगा, लिख के ले लो. Because in my 11 years of teaching experience, I have seen every year this question is a compulsory question, right? So इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी एंड शॉर्ट टाइप्स आंसर के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी. तो थोड़ा गौर फरमाना इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस अंडरस्टैंड. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज? द क्वेश्चन इज नोन एज कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल, राइट? सो यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चन like define communication process or define communication process model in details if you are getting a long question. If you are getting short questions, in the short questions what are the questions you will be getting? Either what is encoding, what is decoding, what is channelization, what is feedback, what is ideation. So these are the questions you will be getting for short types or multiple type questions, right? But as we have discussed that we are only going to focus on long questions. If you will focus on long questions, automatically you will be getting answers for short type questions as well as multiple type questions. Okay, so without wasting much time, let us start the topic and let us understand the topic in details. Okay, yes. So in the last class we have discussed there are elements or body parts of communication. Do you remember? Yes, you have to. So जैसे कि हमने कल बात किया था कि इंसान के शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, ठीक है? वैसे ही कम्युनिकेशन में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है. बट इफ somebody will ask you, could you please define human body's digestive system, right? अगर आप खाना खा रहे हो लेकिन आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है, क्या आप नेक्स्ट डे खाना खाओगे? खाना खा सकते हो लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको, है कि नहीं? Yes. Similarly, in communication process also the same process happen. It is a, by the way, it is a cycle, right? It is a cycle like human digestive system. Couple of organs are being associated in this particular communication process. ठीक है? तो हम डिस्कस करते हैं ये प्रोसेस को इन डिटेल्स में. तो हम देखते हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट ये प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है? सो नंबर 1, सेंडर. विदाउट सेंडर वी कैनॉट इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. रिसीवर, because without receiver communication process is not possible or incomplete, because if somebody won't listen to sender's message then it is just valueless or it is just worthless sending a message, right? So a receiver has to be there, a message must be there. On that basis communication process will be built. After that feedback and channel. So these are the elements are being associated, right? These are the elements are associated in communication process. But what are the processes happened in this model? ठीक है? कौन सा प्रोसेस होके कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? पहले मैं आप लोगों को बता दूं एक एक करके, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, राइट? सो द नंबर 1 process is ideation. What is that? Ideation.
Number 2 is encoding. Number 3 is channelization. Channelization, or which is also known as transmission. Transmission. Number 4 is decoding. ठीक है, Number 4 is decoding, and last but not the least, number 5 is feedback. आप पूछोगे कि मैम फीडबैक एलिमेंट में भी है और प्रोसेस में भी है, हाउ इट इज पॉसिबल? सो फीडबैक इज अ कॉमन एलिमेंट एंड प्रोसेस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. As I said, feedback is a catalyst, or without feedback the entire communication process is incomplete. That is why feedback is a common element as well as a process. Right? So how many steps are being involved in communication process? कितने steps associated है ये communication process model के लिए? तो याद रखना 5 steps. जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना उठाना इज अ प्रोसेस, खाना मुंह पे लेके चबाना इज अ प्रोसेस, खाना अंदर तक जाना एक प्रोसेस है, और अंदर जो प्रोसेसिंग होना भी एक प्रोसेस है, और बाहर निकलना भी एक प्रोसेस है. तो कितना प्रोसेस हुआ टोटल? 5-6 प्रोसेस टोटल हुआ है ना. सिमिलरली इन कम्युनिकेशन प्रोसेस देयर आर 5 डिफरेंट स्टेप्स एसोसिएटेड. ओके, तो समझते हैं एक के बाद एक कि आइडिएशन क्या है, एनकोडिंग क्या है, चैनलाइजेशन ट्रांसमिशन क्या है, डिकोडिंग क्या है और फीडबैक क्या है. ठीक है, तो पहला प्रोसेस जो है वो है आइडिएशन. राइट, सो पहला प्रोसेस है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, पहला प्रोसेस है आइडिएशन. जो कौन करता है? सेंडर डज इट. हु डज इट? सेंडर डज इट. Right? So let us understand what is the definition of ideation. Ideation का definition क्या है? When an idea comes into mind of a sender is known as ideation. इसका मतलब है सेंडर के दिमाग में लड्डू फूटा, एक नहीं 2 लड्डू फूटा. तो सेंडर के दिमाग में जब लड्डू फूटती है तब उसके मन में क्या आती है कि कुछ आता है कि वो फुदकने लगता है, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है. सो व्हेन द आइडिया इज देयर इन द माइंड ऑफ द सेंडर, और यू कैन से बर्थ ऑफ एन आइडिया इन द माइंड ऑफ अ सेंडर इज नोन एज आइडिएशन. जब आइडिया का पैदाइशी होता है सेंडर के माइंड में, उसको बोला जाता है आइडिएशन. ठीक है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का पहला प्रोसेस है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में खाना निवाला अंदर गया तो प्रोसेसिंग शुरू हुआ, सिमिलरली ये प्रोसेसिंग शुरू होने से कम्युनिकेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है. सो आइडिएशन इज द फर्स्ट प्रोसेस. ओके, फर्स्ट प्रोसेस. हु क्रिएटेड इट? सेंडर क्रिएटेड इट, और सेंडर क्रिएट्स इट. ओके, सो व्हेन आइडिएशन इज बीइंग क्रिएटेड, then to deliver it needs to convert it into a language, isn't it? Without, as I said or as we discussed, language is the medium of communication, or language is a channel of communication. बिना भाषा के हम बातचीत नहीं कर सकते हैं. सो सेंडर क्या करता है? पहले आइडिएशन क्रिएट हुआ, फिर उसको एक मैसेज को एक शेप देना है. ठीक है, वो जो आइडिया को एक शेप देना है. तो आइडिया को जब हम शेप देते हैं, किस में शेप देंगे? एक भाषा में शेप देंगे, है ना. सो व्हेन आइडिया कन्वर्टेड इनटू अ लैंग्वेज, व्हेन द आइडिया ऑफ अ सेंडर कन्वर्टेड इनटू अ लैंग्वेज, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनकोडिंग. ठीक है, तो जब आइडिया कन्वर्ट होता है लैंग्वेज में, उसको बोला जाता है एनकोडिंग. ठीक है, यस.
तो आपको चिंता हो रही होगी कि ये सब चीज़ें आपको लिखना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंटायर डिटेल्स नोट ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर विल बी प्रोवाइडेड। जिसको नोट्स की ज़रूरत है नीचे दी गई हुई ईमेल आईडी में मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इफ आई एम हियर नथिंग टू फियर, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। Only thing is that you need to understand the entire concept for its better implementations in your life to get more success. ठीक है, तो एनकोडिंग कौन करता है? सेंडर करता है, राइट? जब आइडिया एक लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है तो उसको बोला जाता है एनकोडिंग, एंड हु डज इट? सेंडर डज इट। क्लियर? तो ये एक पूरा प्रॉपर शेप में आ गया क्या? मैसेज जो है पूरा शेप में आ गया। तो वो जो बनी गई मैसेज को मुझे किस तक पहुंचाना है? रिसीवर तक पहुंचानी है कि नहीं? रिसीवर तक पहुंचानी है। सो रिसीवर तक पहुंचाने के लिए आई हैव टू चूज अ पर्टिकुलर चैनल, इजंट इट? थ्रू दैट चैनल द मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू द रिसीवर। तो जो चैनल को यूज करके मैंने अपना मैसेज जो है रिसीवर तक पहुंचाया, जो चैनल को यूज करके मैंने मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया, वो प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसमिशन। क्या बोला जाता है? ट्रांसमिशन। When the messages are being sent to a receiver by use of particular channel, this process is known as channelization. Okay, I hope this message is clear. If you do not understand the message, again go back and watch, then understand. Okay, तो ट्रांसमिशन जो है वो थर्ड स्टेप है, राइट? सो फर्स्ट स्टेप इज आइडिएशन, सेकेंड स्टेप इज एनकोडिंग, एंड थर्ड स्टेप इज channelization or transmission. When the transmission is happened, then the message is already reached at receiver's place. Okay, receiver तक पहुंच गया जब ट्रांसमिशन हो गई। Understood? So when it comes to receiver, we have already discussed, receiver का काम है मैसेज को अंडरस्टैंड करना और रिप्लाई देना, है कि नहीं? तो जब रिसीवर के पास आया, receiver has to understand the message, isn't it? So it is the responsibility of a sender to find out the right language to the receiver, isn't it? तो रिसीवर के पास आपको मैसेज पहुंचाने के लिए you need to find out the right language, तब जाके रिसीवर को मैसेज समझ में आएगी। तो जब रिसीवर को समझ में आएगा तो उसको एक रिप्लाई भी देनी है सेंडर को, ठीक है? तो वो क्या करेगा? तो वो डिकोडिंग करेगा मैसेज को, ठीक है? तो डिकोडिंग का मतलब है व्हेन रिसीवर स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज सेंट बाय द सेंडर, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकोडिंग। जब रिसीवर दी गई मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और उसको एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है रिप्लाई के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिकोडिंग। सो हु डज डिकोडिंग? अ रिसीवर डज द डिकोडिंग प्रोसेस. So when the decoding is being done, it is again converted into a language for feedback. जब decoding understanding हो गई, तब उसको और एक लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है फीडबैक के लिए। तो again it comes to sender by the form of reply. ये सेंडर के पास फिर से आती है कौन से फॉर्म में? रिप्लाई के फॉर्म में। क्लियर? यस। सो दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल एंड दिस इज द फोर्थ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल. सो दिस इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल विच इज नोन एज रिप्लाई और फीडबैक लूप, एंड इट विल अगेन come back to sender. As we already discussed yesterday, communication is a two-way process. It goes, then it again comes, right? It comes back to the original point, which is sender's point.
ये जाता भी है और लौट के आता भी है. So the entire process is known as communication process model and this is meant for a long question. जैसे कि आपको ideation को explain करना है, फिर encoding क्या है, decoding क्या है, transmission क्या है and feedback क्या है, आपको one by one पूरा डिटेल में आपको explain करनी है. अगर short notes में आती है तो जो प्रोसेस को वो पूछेगा आप उसके ऊपर आंसर आपका लिखोगे. ठीक है. So yes, I hope you understood the entire process model, which is very easy. Okay, so only 5 processes you need to remember. और आप इसको कैसे याद रखोगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जैसे कि खाना लिए, चबाए, अंदर गया, प्रोसेस हुआ, निकला, फिर खाना खाए. सिमिलरली सेंडर ने इनपुट दिया थ्रू आइडिएशन एंड कोडिंग, चैनलाइज होकर रिसीवर तक पास पहुंचा, फिर रिसीवर उसको डिकोड करके एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रिप्लाई के थ्रू सेंडर के पास पहुंचा. दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, राइट? दिस इज हाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस एग्जिस्ट. ओके, दिस इज हाउ कम्युनिकेशन हैपेंस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. आई होप द मैसेज इज ऑल क्लियर एंड आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप नया है, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकॉन दबाते हो आपको पता है आपको नई नई वीडियो की अपडेट्स आती है. ओके, स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर अपकमिंग वीडियोस. टेक केयर गाइस, बाय.